Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockville VBA College Vapi, and I'm going to teach a fundamental of economics subject. And we will continue our chapter that is demand analysis. Okay, and in that, that is remaining part types of demand. This is fifth point: price demand, income demand, and cross demand. In earlier video, we will discuss about the demand for the consumer goods and producer goods, then autonomous demand and derived demand, then short run demand and long run demand, and fourth firm demand and industry demand. So today in this session we will discuss the fifth type, that is price demand, income demand and cross demand. Now ये फिफ्थ टाइप अलग से भी एग्जाम में आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड करके. सो अच्छे से पढ़ना, ईजी है. चल, first is what price demand. Now first of all, what is price demand? Now the name itself says price demand. It means it expresses the relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. ओके, वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, इट मीन्स प्राइस डिमांड इंडिकेट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a consumer will buy at a various prices. यानी वी एज अ कंज्यूमर हम लोग कितना क्वांटिटी परचेज करते हैं एट अ डिफरेंट प्राइसेस. सो it is assumed that all other factors which affect the demand it must remain constant. For example, income of the consumer remain constant, price of related goods remaining constant, consumers taste and preferences must remaining constant. Then what happened? Rise in price of the product it leads to fall in its demand, and fall in price it leads to expansion in its demand. ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कंसेप्ट. आया समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइस डिमांड? प्राइस डिमांड shows the relationship between price of the product and quantity demand. Okay, and a price demand indicate that various quantities are demanded or various quantities of a commodity which a consumer will buy at a various prices. So it is assumed that all other factors which affecting demand must remain constant. तो हम लोग ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स. सो प्राइस के अलावा हर एक फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा. तो सो कौन से फैक्टर्स? कंज्यूमर्स का इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, population, price of related goods, advertisement, government policy, all the factors remaining constant. It is assumed to be constant. So what happen? Rise in price leads to fall in its demand, and fall in price it leads to rise in its demand. आया समझ में? Okay, so in brief, price demand relationship दिखाता है price of the product and quantity demand. Okay, and a price demand express डिफरेंट क्वांटिटी कंज्यूमर बाय करता है एट अ वेरियस प्राइसेस. ओके, सो प्राइस डिमांड एज्यूम दैट के ऑल अदर फैक्टर्स विच अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट. यानी अदर फैक्टर्स को हम लोग एज्यूम करेंगे कांस्टेंट रहेगा. तो प्राइस के अलावा ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट का पॉलिसी, एडवर्टाइजमेंट, डेमोग्राफिक सब कांस्टेंट रहेगा. तो क्या होगा? जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइज हो जाएगा. दिस इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, सो प्राइस डिमांड रिलेशनशिप कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ वन फिगर. ओके, सो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस मेजर क्वांटिटी डिमांड, x measure the quantity demand, y measure price of the product. Now ये hypothetical diagram है. When price of the product is OP, when the price of the product is OP, at that time quantity demand is OM. So यहाँ पे एक point मिलेगा OM. Now when the price rise from OP to OP1, अभी OP1 हो गया तो प्राइस राइज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना. OM से कम होके कितना हो गया? OM. OM1 से कम हो गए OM होगा. तो यहाँ पे मिला आपको. ओके, सो जैसे हम लोग ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, डिमांड का स्लोप क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोप. क्यों डाउनवर्ड स्लोप? बिकॉज प्राइस एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है. ओके, इसलिए ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप जाता है. आया समझ में? नाउ उसको हम लोग अल्फ़ाबेट लेके भी समझा सकते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10, when
प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10. एट दैट टाइम क्वांटिटी डिमांड इज 30 यूनिट्स, जस्ट एज्यूम. तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा. नाउ व्हेन प्राइस राइज 10 से राइज होकर ₹20 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. 30 से कम होकर कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया. सो आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिलेगा. ओके, सो जैसे हम लोग ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, डिमांड का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, इनवर्स रिलेशनशिप है. सो ऑलवेज डिमांड का इज व्हाट, स्लोप्स डाउनवर्ड. दिस इज व्हाट प्राइस डिमांड. आया समझ में. नाउ नेक्स्ट, इनकम डिमांड. जैसे प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशनशिप दिखाता था, तो इनकम डिमांड किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांड. सो इनकम डिमांड express the relationship between income of the consumer and the quantity of commodity demanded. So income demand tell us that different quantities are bought at different level of income. Okay, so here other factors which affecting demand must remain constant. Other factors which affect demand remaining constant, जैसे सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो व्हाट हैपन, कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा. कंज्यूमर्स इनकम विल लीड टू राइज इन द कंज्यूमर इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड, एंड फॉल इन कंज्यूमर इनकम विल लीड टू फॉल इन द डिमांड. यानी कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेनिंग कांस्टेंट. तो व्हाट हैपन, जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, एंड कंज्यूमर्स का इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. जस्ट एज्यूम कि मेरा इनकम 50,000 रुपीज़ है, अभी इनकम बढ़ा 1 लाख हो गया, तो बट ऑब्वियस मैं ज़्यादा कॉमोडिटी परचेस करूँगा तो डिमांड बढ़ जाएगा. ओके, एंड जब इनकम कम होगा तो मैं डिमांड भी कम करता हूँ, बट कब, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, समझ में आया. सो इन ब्रीफ, व्हाट इज इनकम डिमांड. इनकम डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी इट टेल अस डिफरेंट क्वांटिटीज आर बॉट, आर परचेज्ड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. सो इट इज एज्यूम other factors affecting demand remaining constant, then rise in consumer income will lead to rise in the demand, and fall in consumer income will lead to fall in the demand. It means इनकम एंड डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, जनरली इनकम एंड डिमांड के बीच में क्या, कौन सा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव, जैसे इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, एंड जैसे इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. आया समझ में. नाउ इट शुड बी नोटेड दैट कि इनकम डिमांड रिलेशनशिप इज डिफरेंट फॉर द सुपीरियर गुड्स एंड द इंफीरियर गुड्स. ओके, सो गुड्स, कॉमोडिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. सुपीरियर है ना अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स, एंड इंफीरियर है ना लो क्वालिटी वाला गुड्स. सो इनकम डिमांड रिलेशनशिप सुपीरियर गुड्स के लिए अलग है एंड द इंफीरियर गुड्स के लिए अलग है. चलो, फर्स्ट इज व्हाट, सुपीरियर गुड्स. ओके, नाउ सुपीरियर यानी गुड क्वालिटी गुड्स. अच्छा, नॉर्मली इनकम डिमांड रिलेशनशिप इज पॉजिटिव फॉर द सुपीरियर गुड्स. सुपीरियर गुड्स में इनकम डिमांड रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव. से एग्जाम्पल बटर, घी, मिल्क, ये सब अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स है. दैट इज व्हाट इनकम डिमांड रिलेशनशिप इज व्हाट पॉजिटिव फॉर द सुपीरियर गुड्स. कैसे, rise in income will lead to rise in the demand for this milk, butter, ghee, and fall in income will lead to fall in the demand. समझ में आया कि जैसे कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेगा, मिल्क, घी, बटर वगैरह. एंड जैसे कंज्यूमर्स का इनकम कम हो जाएगा, मिल्क का डिमांड, ओके, घी, बटर का डिमांड क्या होगा, कम होगा. दैट इज व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप. इंक्रीज इन इनकम, डिमांड ऑफ द सुपीरियर गुड्स इंक्रीज, फॉल इन इनकम, डिमांड फॉर द सुपीरियर गुड्स फॉल. ओके, सो ये हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम में समझाया है. y एक्स पे इनकम लिया, x एक्स पे क्वांटिटी डिमांड लिया.
व्हेन कंज्यूमर्स का इनकम ओ आई था वो टाइम पर डिमांड ऑफ द सुपीरियर गुड्स ओ एम था। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, जैसे कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ा ओ आई से ओ आई वन, देन द डिमांड ऑफ द सुपीरियर गुड्स ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम ओ एम टू ओ एम वन। तो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप अपवर्ड स्लोप जाएगा। डिमांड का स्लोप क्या जाएगा? डिमांड का स्लोप अपवर्ड जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज इंक्रीज इन इनकम लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। यही डायग्राम को हम लोग मीनिंग के पॉइंट रुपीस लेके भी समझा सकते हैं। सपोज कंज्यूमर्स का इनकम 50,000 था, सपोज कंज्यूमर्स का इनकम 50,000 था, वो टाइम पे उसका डिमांड 100 यूनिट्स था, कोई भी कॉमोडिटी सुपीरियर गुड्स का। अभी कंज्यूमर्स का इनकम 1 लाख हो गया, तो डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी क्या हो गया? 200 हुआ, इंक्रीज हुआ। तो उसका स्लोप क्या गया? अपवर्ड स्लोप गया, ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट गया फॉर द सुपीरियर गुड्स। आया समझ में? वेयर एज इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर यानी लो क्वालिटी वाला गुड्स। ओके, सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इनकम डिमांड रिलेशनशिप it is always be negative। ओके, सो इन्फीरियर गुड्स में कौन सा एग्जांपल आएगा? कोवर्स क्लोथ, कोवर्स फूड ग्रेन, यानी लो क्वालिटी वाला गुड्स। सो इनकम डिमांड रिलेशनशिप फॉर द इन्फीरियर गुड्स इज व्हाट? नेगेटिव। वाई इट इज नेगेटिव? राइज इन इनकम विल लीड टू फॉल इन द डिमांड ऑफ द इन्फीरियर गुड्स। यानी जैसे कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स कम हो जाएगा। वाई? जैसे कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स तो अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स परचेस करेगा ना, तो डिमांड ऑफ लो क्वालिटी वाला गुड्स, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप। एक अप गया तो डिमांड कम हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप। सो जनरली इनकम डिमांड रिलेशनशिप फॉर द इन्फीरियर गुड्स इट इज व्हाट? नेगेटिव। वाई इट इज नेगेटिव? जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड ऑफ द इन्फीरियर गुड्स कम हो जाएगा, दैट इज कोवर्स क्लोथ, कोवर्स फूड ग्रेन वगैरह। बिकॉज जैसे इनकम बढ़ेगा कंज्यूमर्स का, he would switch over to better quality of grains like wheat, rice and better quality of the clothes। जैसे इनकम बढ़ेगा कंज्यूमर्स अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स परचेस करने जाएगा, नहीं कि बैड क्वालिटी वाला गुड्स को परचेस करेगा। तो इनकम बढ़ा तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स कम हुआ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप। उसको हम लोग समझते हैं इन केस ऑफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इनकम ऑन वाई एक्स पे लिखा, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्स पे लिखा। नाउ सपोज मेरा इनकम ओ आई था, ओ आई, वो टाइम पे मेरा डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या था? ओ एम, यहाँ तक था। अभी मेरा इनकम बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ा तो मैं अच्छी क्वालिटी वाला परचेस करूँगा, तो बैड क्वालिटी वाला गुड्स, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो गया? कम होके ओ एम से ओ एम वन हो गया, कम हुआ। सो डाउनवर्ड स्लोप गया। आया समझ में? अब इसको मैं अल्फ़ाबेट लेके समझा, नंबर्स लेके, रुपीस लेके। सपोज मेरा इनकम 1000 था, ओके, तो मैं कोवर्स क्लोथ, कोवर्स फूड ग्रेन में 100 यूनिट परचेस करता था, तो ये मेरा डिमांड का पॉइंट आया। प्राइस, इनकम एंड डिमांड को ज्वाइन किया तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। नाउ इनकम इंक्रीज हुआ, मेरा इनकम 10,000 हो गया, ओके, तो मैं अभी ये लो क्वालिटी वाला गुड्स परचेस नहीं करूँगा, बैड क्वालिटी वाला गुड्स परचेस नहीं करूँगा, मैं अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स परचेस करूँगा, तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, सो कम हो गया, अभी मैं परचेस करना बंद कर दिया, सो कम हुआ, सो मेरा डिमांड कितना हो गया? ओनली 50। तो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मिला। तो डिमांड का स्लोप कैसे गया? इनकम डिमांड रिलेशनशिप फॉर द इन्फीरियर गुड्स नेगेटिव गया। इनकम बढ़ा, डिमांड कम हो गया, दैट इज व्हाट? इन्फीरियर गुड्स। आया समझ में? एंड लास्ट, क्रॉस डिमांड। नाउ क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन change in demand for the product in response to change in price of not this product but some other related product। यानी क्रॉस डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड चेंज होता है, नहीं कि वो प्रोडक्ट का डिमांड प्राइस चेंज होने से,
बट कोई दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस डिमांड. सो क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यू टू change in price of not this product but changes in price of some other related products. Okay, so related products may be that is substitute product and the complementary products. रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब सब्सिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, यानी डिमांड चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, डिमांड चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इज व्हाट, क्रॉस डिमांड. ओके, सो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, टी एंड कॉफी सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है, मोटरसाइकिल एंड द पेट्रोल आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. सब्सिट्यूट यानी अवेजी वस्तु, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक. मैंने आपको कंसेप्ट समझा लिया, व्हाट इज सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, समझाया था. सो टी एंड कॉफी सब्सिट्यूट है एंड मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स टी नहीं होगा तो कॉफ़ी भी चलेगा, कॉफ़ी नहीं होगा तो टी भी चलेगा, सब्सिट्यूट है. मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल, अगर मोटरसाइकिल को रन करना है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, आया समझ में. और पेट्रोल का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, मोटरसाइकिल के ऊपर. सो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर. मोटरसाइकिल एंड द पेट्रोल आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो क्रॉस डिमांड का मीनिंग क्या बोल रहा है कि क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट in response to change in price of not this product but change in price of some other related products, and related products may be that is substitute products and the complementary products. Now change in price of any one of this product brings about change in the demand, its own demand, as well as change in the demand for the substitute product and the complementary product. यानी जैसे प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो उसके डिमांड में तो चेंज आएगा ही आएगा, बट उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है ना, उसके भी डिमांड में चेंज आएगा. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस डिमांड. आया समझ में. नाउ क्रॉस डिमांड, इट इज डिफरेंट फॉर द सब्सिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. चलो, फर्स्ट इज व्हाट, सब्सिट्यूट गुड्स. सब्सिट्यूट गुड्स का एग्जांपल क्या है, टी एंड कॉफी. नाउ क्रॉस डिमांड फॉर द सब्सिट्यूट गुड्स, इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट इज एग्जांपल मैंने लिया टी एंड कॉफी. नाउ राइज इन द प्राइस ऑफ टी, जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा विल लीड टू फॉल इन द डिमांड ऑफ टी, बट इट विल लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ कॉफी. यानी जैसे टी का प्राइस बढ़ेगा, टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड तो कम हो जाएगा, बिकॉज अभी कंज्यूमर कौन सा गुड्स यूज़ करेंगे, कॉफ़ी. सो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया. यानी टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा. दिस इज व्हाट, क्रॉस डिमांड, क्रॉस. ओके, अभी जो आप एग्जाम्पल में जो समझाते हो ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस डिसाइड होगा. मेरे एग्जाम्पल में प्राइस किसका चेंज हुआ, प्राइस किसका चेंज हुआ, टी का. ओके, एंड डिमांड किसके, डिमांड ऑफ कॉफ़ी में चेंज आया. तो जो डिमांड में चेंज आएगा वो एक्स लेना है, एंड जो प्राइस में चेंज आएगा वो वाई लेना है. नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज ओ पी, एट दैट टाइम डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज ओ क्यू. तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, जब प्राइस ऑफ टी बढ़ा, ओ पी से ओ पी वन हो गया, तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ गया, ओ क्यू से ओ क्यू वन, यानी आपका पॉजिटिव स्लोप गया. आया समझ में. सो क्रॉस डिमांड, दैट इज सब्सिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड, क्रॉस डिमांड फॉर द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है. यानी प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीज, देन द डिमांड ऑफ अनदर सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज. सो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, टी एंड कॉफ़ी. सपोज प्राइस ऑफ टी, सपोज प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हुआ तो कंज्यूमर्स क्या यूज़ करेंगे, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज कॉफ़ी का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. सो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा. सो डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देखो सेम रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड. क्लियर. सो नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. सो क्रॉस डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इज ऑलवेज बी नेगेटिव. For example, motorcycle and the petrol, that is rise in the price of motorcycle will not only lead to fall in the demand of motorcycle but it will also lead to fall in the demand of petrol. आया समझ में? जैसे मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल तो कम हो ही जाएगा, बट जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज़ होता है तो पेट्रोल का भी डिमांड क्या होगा? कम होगा. आया समझ में? सो प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल बढ़ा तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हो गया. सो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप आया, एक एरो ऊपर जा रहा है तो एक एरो नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव रिलेशनशिप. सो क्रॉस डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट इज जनरली नेगेटिव. ओके, अभी आप देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे मैंने कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस चेंज किया? मोटरसाइकिल. सो मैंने वाई एक्स पे प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल लिखा, तो कौन सा डिमांड में चेंज आया? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट पेट्रोल. सो डिमांड ऑफ पेट्रोल में चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांड एक्स पे लिखा. नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज ओ पी, वो टाइम पे डिमांड ऑफ पेट्रोल ओ क्यू था. अभी मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ा, ओ पी से ओ पी वन हो गया, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम होके ओ क्यू वन हो गया एंड आपका डाउनवर्ड स्लोप नेगेटिव स्लोप आ गया. ओके, अभी मैं उसको अल्फ़ाबेट लेके नंबर्स लेके समझा रहा हूँ. सपोज मोटरसाइकिल का प्राइस 50,000 रुपीज़ था, वो टाइम पे डिमांड ऑफ मोटरसाइकिल बढ़ा होगा तो पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ा था और वहाँ पे 1 लाख टन हो गया था. 1 लाख टन हो गया था. नाउ जैसे मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ के 1 लाख हो गया, ओके, सो मोटरसाइकिल खरीदने वाले कम हो जाएंगे. मोटरसाइकिल खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल यूज़ होता है उसका भी कंजप्शन कम हो जाएगा. सो डिमांड ऑफ पेट्रोल कम होके कितना हो गया? 50 लाख टन हो गया. 50 लाख टन हो गया. ओके, सो उसका डिमांड कब कैसे गया? नेगेटिव गया. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हियर हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ डिमांड. Clear? Now in next class we will discuss the next topic, that is demand schedule, change in demand and shift in demand.